Okay, students, this is Mahendra Sanghani, and I'm welcoming all of you to my lecture of matrix. This is seventh video for the chapter matrix, and today we are only watching all the solutions of the question 10 to the last question of this exercise 3.2. And if you have any doubt, you can ask me in my last live lectures or in next lectures, or you can call me in my numbers. So this is question number 10, and here is the solutions. As you can see, you just check, you can refer the solution, and if you have solved all this question, then definitely you can verify those answer with my solution. And the method which I have followed, that you need to always refer, because in exam you need to write, and whatever you write, that should be in a proper way. Okay, I think yes, we have reached question number 12. Yes, you can see from this. You can stop or pause video in between to see the solutions. This is question number 15, and this is somewhat IMP question, as you need to find value of a square minus 5a plus 6i, for which we need a square, and that we can easily find by using a into a. So multiplying matrix A with itself, and we get answer, and putting value of a square, a and I, will get the answer, final answer. And similar question, example question number 16, which can be asked in 4 marks, and it is again one of the most important question of this exercise, and in this question what we need to do is just prove this. In earlier question we need to find the value of this one. In this question we need to find the we need to prove the value of this one, but here we need to find the value of a cube also. That is what somewhat bigger task, that will always increase number of step and time. कम से कम 4 या 5 or 6 मिनट में भी it can take this by this question, है ना. 6 या 7 मिनट तक भी ले सकता है, and chances of error is also higher whenever multiplication of matrix is that, है ना. So how we can find it using Gujarat board? You can see a square a into a cube a square into a. This procedure already we have seen in our earlier lectures, although have given this step by step, and value, put the value of this a cube a square a and I in this equation, LHS में रख दो, will get final answer as 0 0 0 matrix. 3 cross 3 का आपको 0 0 0 matrix मिलेगा, and that is considered as 0 matrix. See, this is 0 matrix, this is not 0, this is 0 matrix. And if you want to find it using JW method, I have given this also. As you can see, characteristic equation of matrix, and in earlier live lecture also we have seen this procedure. Here I have written this step by step so that you can refer it. If you have any doubt, you can ask me in my next lecture also, during that time, using phone or anything. In YouTube also you can comment that how you can find the solution, or what is the meaning of this sentence, or whatever. You can ask me in my YouTube video also, if you are not aware with me. Okay, then lambda 1, lambda 2, lambda 3. Here you can see the pattern, plus minus pattern of a cube a square a and I, that also we can notice. And lambda 1, lambda 2, lambda 3 are the coefficient, and coefficient of a cube is only 1. And how we can find the value of lambda 1, lambda 2 and lambda 3, that is also written over here. This lambda 1 is trace of a, lambda 2 is addition of cofactor of diagonal element. I have found this value step by step with all the detail which are required. And lambda 3, that is determinant of a. Determinant of a can be easily found using the technique that I think you already know. Maybe you have studied in 11th standard to find area of triangle, or maybe you can use this determinant in creating equations of straight line or in circle. And yes, or you can study this chapter in this semester in chapter as a chapter 4, so that I don't think so कि determinant की value find करने में कोई problem आ सकता है.
Okay, so this is what lambda value of lambda 3 using determinant, and just put all the value of lambda 1, lambda 2 and lambda 3 will get final answer, and that is the answer which they have written in the question. यही हमको प्रूव करना था. सो ये जनरली की टेक्निक से हम प्रूव कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो यू कैन यूज दिस इन गुजरात बोर्ड. Why? Because in Gujarat board in NCERT book they have not written anything like characteristic equation of matrix, so that we cannot use this technique in Gujarat board examination. So for Gujarat board you need to follow this technique. Okay, in this technique I have already told you, find value of a cube, a square and a, and just put those value in LHS and just summation subtraction, and at last we'll find the answer as 0 0 0 matrix. Okay, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकते हैं JEE में. If a equal to this one and if a cube plus k1a square plus k2a plus k3a equal to 0, then find value of k1, k2, k3. So in this case we should have to use this JEE technique, because this kind of question can be asked in JEE examination. And if you want to find a k1, k2, k3, you can find characteristic equation of this matrix like this here, and just compare k1, k2, k3 with this. You will easily find the value of this. Okay, anyhow Gujarat board method is also can be used over here. Just find value of a cube, a square and a, and put all the value over here and comparing with 0 0 0 matrix. Just first of all you need to find all addition of all the matrix and then compare it with 0 0 matrix. Definitely will find equation in form of k1, k2, k3, and solving those equation of k1, k2, k3, at last we'll find k1, k2, k3, and this is very very lengthy method. So I am advising you to not follow that method if you have been asked kind of question like this, है ना. अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, do not think of those Gujarat board method. Let us find value of a square, a cube, and put it over here, and let's compare it with the 0 matrix and find the value of k1, k2, k3 equation of k1, k2, k3, and let's solve those equation and find k1, k2, k3. This is very lengthy, very very lengthy method. So here in JEE, if they will ask kind of question like this, just follow kind of technique that I have given you. Just find the characteristic equation and you can easily approach your answer. Okay, this is question number 17, and as you can see here I am giving you one more technique for this, because it is also similar to the question number 16. Here what I can say, as matrix A is 2 cross 2 matrix, I can create characteristic equations. कैरेक्टरिस्टिक एक और इक्वेशन इसका क्रिएट करना है, ठीक है. तो वो क्या बनेगा, तो वो ए स्क्वायर से स्टार्ट होगा, ठीक है, ए स्क्वायर से स्टार्ट होगा. देन आई कैन राइट माइनस, बिकॉज मैंने बता दिया ना, प्लस माइनस प्लस ऐसे साइन होती थी. फिर लैम्बडा 1, फिर ए स्क्वायर का हो गया ए, फिर माइनस का प्लस हो गया प्लस, देन लैम्बडा 2, फिर ए का पावर 1 था, पावर हो गया 0, और उस 0 पावर के साथ हम आई लिखते थे. सो बाय दिस वे वी कैन राइट दिस characteristic equation where lambda 1 can be over there. Lambda 1 is trace of a, it is also similar over here, and lambda 2 over there, lambda 2 वहाँ पे क्या था, तो वहाँ पे addition of cofactor of matrices था, addition of cofactor of diagonal element था, और यहाँ पे cofactor का addition नहीं है. यहाँ पे directly lambda 2 is the last step, जो I का coefficient था वही, which is determinant of A. So if you found trace of A for this, trace of A is simple, that you know very well in our last lecture. trace of A हमने बनाया था, कैसे बना सकते हैं, तो addition of diagonal element, that is 3 minus 2, which is equal to 1, and determinant of A, that you know very well, cross multiplication of this, 3 to the minus 6 and minus 6, 4 minus 2 the minus 8, so we'll get 8 minus 6, that is 2. So finally we get our answer, that is a square minus lambda 1 की वैल्यू है 1 into a, that is a, plus lambda 2 is 2i equal to 0.
सो इसको अगर इसके साथ कंपेयर किया जाए इसके साथ, ठीक है, तो हमको फाइनली पहले इसको चलो मैं इसके फॉर्म में बना देता हूँ, s स्क्वायर इक्वल टू a माइनस 2i. सो नाउ इफ यू कैन कंपेयर दिस k इक्वल टू 1, है ना, k इक्वल टू क्या मिल गया 1. सो यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ k बाय दिस वे ऑल्सो, and that is what the technique of JEE. You cannot use this technique in Gujarat board. This is what the technique of JEE. You can use this technique in JEE only. But if you have been asked this question in Gujarat board, then you can't use. You need to use this technique. Just find the value of a square and a and I, all the value we need to put, and then compare it. Find the equation of find equation in form of k, as you can see. और सभी जगह पे k के इक्वेशन है, तो जस्ट फाइंड कंपेयर एंड फाइंड वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 1. एंड ओवर हियर जस्ट वी नीड टू थिंक ऑफ वैल्यू k शुड बी सिमिलर इन एवरी कंडीशन, बिकॉज वी हैव रिटन एंड इन बिटवीन. अगर एंड लिखा है मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन है, और इंटरसेक्शन में हमेशा ही सभी जगह सिमिलर हो तभी वो आंसर लिख सकते हैं. k इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन k इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन k इक्वल टू 1 इंटरसेक्शन k इक्वल टू 1, देन एंड देन वी कैन राइट k इक्वल टू 1 इज द फाइनल आंसर. If k equal to 1 over here and k equal to 2 over here, then there is no intersecting element. अगर 1 यहाँ पे और 2 है तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा. At that time we need to write answer as an answer. We need to write no solution. जब भी k equal k की अलग अलग वैल्यू अलग अलग केस में आ जाए और बीच में and लिखा हो, then we can say that there is no solution. That you know very well in 11th standard. आपने वो 11th standard में बहुत अच्छी तरह से जान लिया था. Okay? देन क्वेश्चन नंबर 18 IMP क्वेश्चन है, इसको भी बोल सकते हैं. इसमें वैसे इतना टफ नहीं है कोई चीज़, LHS एंड RHS को कंपेयर ही करना है. बट एक जो टफ चीज़ है वो बस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू मैट्रिक्स एंड यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री, हमको कैसे चीज़ को सिंप्लीफाई करनी है वही है. ये क्वेश्चन भी 4 मार्क्स में पूछा जाता है और बहुत बार पूछ लिया है. सो इट इज़ अगेन वन ऑफ द IMP क्वेश्चन. यू नीड टू फॉलो दिस. i प्लस ए, आई तो i2 मैट्रिक्स है 1 0 0 1, a जो मैट्रिक्स है उसका एडिशन करने से ये मिल गया. एंड RHS में जो है वो i माइनस ए एंड दिस वन, तो ये मैट्रिक्स का i माइनस ए हमने ऑलरेडी साइड में फाइंड कर लिया है. इसको यहाँ पे जस्ट रखना है. हाँ, तो RHS i माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स वेर i माइनस ए इक्वल टू दिस वन, एंड i माइनस ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है. जस्ट पुट इट ओवर हियर, just multiply this two matrix will get this matrix. अब जो चीज़ जो एग्जैक्टली जो टिपिकल वाली चीज़ या फिर टिपिकल जो हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं उसका सिंप्लीफिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन के बाद जो सिंप्लीफिकेशन है वो ऐसे करना है. यहाँ से tan अल्फा बाई 2 की वैल्यू चारों जगह पे sin अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देनी है. देन वी नीड टू टेक LCM, सभी जगह LCM ले लेना है. आफ्टर टेकिंग LCM यू कैन नोटिस ओवर हियर दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा, मतलब बीटा की जगह अल्फा बाई 2 रखना है, और दिस इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा माइनस बीटा. सो यहाँ पे बीटा की जगह अल्फा बाई 2 रख के यू कैन इजीली क्रिएट द आंसर इन ईच स्टेप. सभी जगह पे साइन एंड कोस का फॉर्मूला बन गया. जस्ट रिफर इट. यहाँ पे ये जगह है ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा नेगेटिव कॉमन निकाल के आपको फॉर्मूला दिखाई देगा. सो जस्ट मेक इट क्लियर. यहाँ पे पहले नेगेटिव कॉमन निकालो एंड देन नोटिस द फॉर्मूला ऑफ साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2. सो इफ वी सबट्रैक्ट अल्फा एंड अल्फा बाई 2 विल गेट अल्फा बाई 2. cos अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई 2 विच इज 1. देन ये sin अल्फा बाई 2 हो गया और डिवाइडेड बाई cos अल्फा बाई 2 विच बिकम tan अल्फा बाई 2. ये हो गया sin अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा बाई 2 विच इज नेगेटिव tan अल्फा बाई 2 एंड अगेन cos बाई cos विच इज 1. सो दिस इज व्हाट द LHS एंड RHS, एंड फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से LHS एंड RHS दोनों इक्वली आ गए. सो दैट इज वाई बाई दिस वे वी कैन इजिली प्रूव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, चलो इसको देख लेते हैं, बन जाता है तो हाँ वही i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए, दैट वी हैव प्रूव्ड ओवर हियर. ओके ओके, नाउ लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है, अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड. एज यू कैन सी 30,000 को 2 अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है. तो एक में समझ लो मैंने x इन्वेस्ट किया, तो दूसरे में 30,000 माइनस x को इन्वेस्ट करना पड़ेगा. एंड वाई आई हैव टेकन हियर 30,000 माइनस x, वाई आई हैव नॉट टेकन y, बिकॉज जितने कम पैरामीटर रखो उतने कम से कम टाइम में सोल्यूशन हो जाता है, कम से कम इक्वेशन को सोल्यूशन करना पड़ता है. सो आई हैव कंसिडर 1 एज x
एक जगह पे मैंने x इन्वेस्ट किया तो दूसरी जगह पे डेफिनेटली 30,000 माइनस x इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक जगह पे अगर 3,000 इन्वेस्ट किया तो दूसरी जगह पे 27,000 इन्वेस्ट करना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू ऑलवेज अंडरस्टैंड बाय हैविंग एग्जांपल, and by taking that example we can consider x and 30,000 minus x। और यहाँ पे लिखा है एक बॉन्ड में 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे बॉन्ड में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। सो पहले x का 5% इंटरेस्ट मिलके हमको फाइनल इंटरेस्ट मिलेगा और दूसरे का 7% इंटरेस्ट के हिसाब से हमको फाइनल इंटरेस्ट मिलेगा। एंड उसने पूछा है कि भाई टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 है, अगर टोटल इंटरेस्ट 1800 है तो वो इंटरेस्ट कमाने के लिए हमको किस तरह से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब ये x एंड 30,000 माइनस x कितना होगा, दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। सो डेफिनेटली टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 है तो हमको क्या सोचना पड़ेगा कि भाई चलो ये 5% ऑफ x है ना, 5% ऑफ x एंड 7% ऑफ दिस 30,000 माइनस x शुड बी एडेड। दोनों से जितना भी इंटरेस्ट हुआ दोनों का एडिशन 1800 होना चाहिए, जो पहला क्वेश्चन है ना। तो ऑब्वियसली ये इसका आंसर क्या बन सकता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ओके सॉरी हाँ बैटरी लो हो गई थी, सॉरी। 5% ऑफ x एंड 7% ऑफ 30,000 माइनस x, इसको हम कैसे लिखते हैं कि 5% मीन्स 5/100 ऑफ x, ठीक है, प्लस 7/100 ऑफ 30,000 माइनस x। ओके, सो हियर वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस टू, है ना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अगर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इट मीन्स व्हाट कि ये 5/100 एंड 7/100 को एक काम करते हैं, एक अलग से मैट्रिक्स ही एज्यूम कर लेते हैं और x एंड 30,000 माइनस x को अलग से दूसरा मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर a एंड b को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे पहला वाला मैट्रिक्स ये वाला है, दूसरा ये वाला है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन डेफिनेटली फर्स्ट विथ फर्स्ट एंड सेकंड विथ सेकंड करने से आपको यही चीज दिखाई देती है। सो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विच दे हैव ऑलरेडी सेड इन आवर क्वेश्चन कि यहाँ पे हमको यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही हमारे आंसर फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अगर यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है देन वी नीड टू एज्यूम दिस थिंग्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको ऐसे ही डायरेक्टली समझ के हम नहीं कर सकते, हियर वी नीड टू एज्यूम दिस टू थिंग्स। ये जो हमारी जो नॉर्मल चीजें है उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में सिंपली एज्यूम कर लो। पहला 5% 7% को एक मैट्रिक्स दे दो और x एंड 30,000 माइनस x को दूसरा मैट्रिक्स दे दो और दोनों को मल्टीप्लाई करके आप देखो तो आपको तुरंत दिखाई देगा कि हाँ यहाँ पे तो कंसेक्यूटिव और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन ही है एंड दैट इज व्हाट टोटल आंसर ऑफ दिस शुड बी टोटल इंटरेस्ट विच इज 1800। तो उसका हमने पहले से यहाँ पे 1800 बॉक्स में बना के दिखा दिया था, ठीक है। सो जस्ट कंपेयर कर लो, विल गेट x इक्वल टू 15,000। सो अगर x इक्वल टू 15,000 है तो दूसरा इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 30,000 माइनस x मतलब 30,000 माइनस 15,000 विच इज अगेन 15,000। सो दोनों में 15,000 का आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो दे शुड हैव टू इन्वेस्ट 15,000 एंड 15,000 इन बोथ द बॉन्ड एंड दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ फर्स्ट A। You can find the answer of first second B is also like that. Here just we need to replace 1800 with 2000 in this. जहाँ पे 1800 है वहाँ पे 2000 को replace कर लो, you will find answer of x different from the earlier answer and for that x and 30,000 minus x you will find again two different answer with the two different investment for the second case. Okay, so that is what the answer of question number 19. Question number 20. As you can see, Bookshop has a 10 dozen chemistry book, 8 dozen physics book and 10 dozen economic books. I have written all these things. Chemistry की 10 dozen है, physics की 8 dozen है, economics की 10 dozen है. I have converted dozen into the quantity. 10 dozen के हिसाब से 120 quantity होती है, 8 dozen के हिसाब से 96 and 10 dozen के हिसाब से 120 quantity total होगी ये तीनों बुक की। and उसकी सेलिंग प्राइस भी दी है for each, है ना, एक एक की सेलिंग प्राइस दी है, इसलिए मैंने इसको each क्वांटिटी में डिवाइड किया है कि एक केमिस्ट्री की बुक अगर हम खरीदने जाएंगे तो उसका 80 रुपये लगता है, तो इसलिए मुझे एक एक क्वांटिटी के हिसाब से मतलब टोटल 120 क्वांटिटी केमिस्ट्री की बुक की है, इस हिसाब से मुझे इसको डजन में से नंबर ऑफ क्वांटिटी में डिवाइड करना पड़ा, कन्वर्ट करना पड़ा, ठीक है। अब अगर उसने पूछा है कि भाई टोटल सेलिंग प्राइस या फिर टोटल अमाउंट कितना वो कमा पाएगा बाय सेलिंग दिस बुक यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा, ऑब्वियसली मैट्रिक्स अलजेब्रा लिखा है इसलिए हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या सोचा कि अगर 80 एंड 120 का मल्टीप्लाई करते तो यहाँ से कितना सेलिंग होता है वो मिलता है,
1696 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिजिक्स की टोटल क्वांटिटी का सेलिंग प्राइस मिलेगा और इसका 80 and 120 का मल्टीप्लिकेशन से इकोनॉमिक्स की टोटल सेलिंग प्राइस मिलेगी, टोटल सेलिंग प्राइस. एंड इफ यू एड ऑल दिस क्वांटिटी will get the final selling price. Definitely this can be happen only by assuming A matrix as 120, 96, 120 and B matrix by 80, 60 and 80. And if you multiply AB matrix, then definitely AB is like this. Okay, so total amount will be AB equal to multiplication of ये दोनों को matrix का multiplication AB का, as you can see 120 and 80 का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पे भी 120 80 का मल्टीप्लिकेशन करने से हमको केमिस्ट्री का टोटल सेलिंग मिलता था. फिर 96 and 60 का मल्टीप्लिकेशन से हमको फिजिक्स का सेलिंग प्राइस मिलता था. एंड 120 with 80 इसके मल्टीप्लिकेशन से हमको इकोनॉमिक्स का सेलिंग प्राइस मिलता था. और ये तीनों का एडिशन करके हमको जो आंसर मिलता था वो टोटल सेलिंग प्राइस होता था. एंड दैट इज व्हाट फाइनल आंसर दैट यू कैन फाइंड इट बाय योर ओन. सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन 21 फाइनली ये लास्ट के दो क्वेश्चन एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, ये जो 4 मैट्रिक्स है 5 मैट्रिक्स उसको मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिए हैं. एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 21 22. द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी की किस तरह की वैल्यू सोचे ताकि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड. अगर पी वाई एंड डब्ल्यू वाई का एडिशन डिफाइन है, देखो यहाँ पे एडिशन, तो इट मीन्स कि पी वाई एंड डब्ल्यू वाई दोनों के ऑर्डर सेम हो गए. पहला ये हम चीज एक पहले से नोटिस कर ली. दूसरा पी वाई का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है, पी वाई का मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो मैंने अगर पी को यहाँ पे ऑर्डर वाइज लिख दिया, पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के एंड वाई का ऑर्डर है 3 क्रॉस के, देन डेफिनेटली ये बीच वाले दोनों सिमिलर होते हैं. सो k इक्वल टू 3, दैट इज व्हाट द फर्स्ट आंसर वी हैव गॉट फ्रॉम दिस. एंड डब्ल्यू वाई से हमको क्या मिला, तो डब्ल्यू का n क्रॉस 3 एंड y का 3 क्रॉस के. So here we cannot get answer from this comparing these two, क्योंकि 3 and 3 तो हमेशा इक्वल हो गए, हमको कोई वैल्यू मिली नहीं. ओके, अब हमने क्या सोचा कि चलो दोनों के ऑर्डर बना लेते हैं. पी वाई का ऑर्डर हो जाएगा p क्रॉस के एंड डब्ल्यू वाई का ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस के. और हमने जो बताया था उसके हिसाब से अगर दोनों का एडिशन हो रहा है, पी वाई एंड डब्ल्यू वाई का दोनों का एडिशन हो रहा है, इट मीन्स कि ये दोनों के ऑर्डर सिमिलर होंगे. इट मीन्स कि P क्रॉस के एंड N क्रॉस के ऑर्डर सिमिलर होंगे. सो इट मीन्स कि P क्रॉस के इक्वल टू N क्रॉस के, बोथ ऑर्डर आर इक्वल. सो जस्ट कंपेयरिंग दिस टू वी विल से दैट P इक्वल टू N, P एंड N दोनों इक्वल होने चाहिए. दैट इज व्हाट द आंसर मैच विद ऑप्शन ए. क्लियर है ना. जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया साइड में कि अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है तो दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर इक्वल ही होंगे, तभी हम ऐड कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट. अगर यहाँ पे समझ लो 2 क्रॉस 2 है और यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है, वी कैन नॉट ऐड बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनेगा ही नहीं, है ना. पहला दूसरा और यहाँ पे तीसरा एलिमेंट है बट यहाँ पे है ही नहीं, सो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बनेंगे ही नहीं. सो इसीलिए जब भी अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन हो रहा है, तो वो दोनों मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल ऑर्डर वाले. सो बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट एंड मल्टीप्लीकेशन वाला जो ये कंसेप्ट था कि बीच वाले हमेशा ही सेम होते हैं तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा. सो दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने ये दोनों आंसर बना लिए. ठीक है. एंड ये दूसरा इफ n इक्वल टू p देन फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x minus 5z. इट इज अगेन सिंपल. 7x एंड 5z ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन एडिशन के अंदर जो है, तो अगर वो दोनों सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के अंदर है तो हमेशा ही ये दोनों के ऑर्डर सिमिलर होंगे. तो पहले x का ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस n. ठीक है, 2 क्रॉस n. एंड z का ऑर्डर क्या था, 2 क्रॉस p. ठीक है, मैंने दोनों के ऑर्डर लिख दिए. अब मैंने वही चीज वापस बता दी कि अगर मैट्रिक्स के एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको डिफाइन करना है, तो दोनों के ऑर्डर सिमिलर होते हैं. इट मींस कि 2 क्रॉस n एंड 2 क्रॉस p बोथ आर सिमिलर. ओके. और वही जो होगा वो ऑर्डर होगा इसका फाइनल. मतलब ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं एज एन ऑर्डर. तो इसका ऑर्डर ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शन में 2 क्रॉस n दिया है जो हमारा फाइनल आंसर बनेगा. वही यहाँ पे 2 क्रॉस n दिखाया है. 2 क्रॉस p है, यहाँ पे p क्रॉस 2 है. सो ऑप्शन ए कैन नॉट बी मैच, है ना. एंड ऑप्शन सी एंड डी तो वैसे भी मैच नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी आ गया इसलिए. सो दिस इज व्हाट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो आई होप मैंने सभी क्वेश्चन को बराबर से समझाया है. और जो क्वेश्चन मैंने नहीं समझाया मेरे ख्याल से उसमें आप सॉल्यूशन देख के समझ सकते हो. मे बी अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है देन यू कैन मीट मी इन माय लाइव लेक्चर्स. ऑल्सो you can ask
or you can comment some doubts in my YouTube video, so that I can give you the solutions for that particular question. Okay, thank you very much dosto. Thank you.